राइट सर। कि मैं आपके स्क्रीन पे अभी ले रहा हूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट डिस्कस होना चाहिए। दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें स्पेशली आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द डेफिनेशन। This is section 2 of the Contempt of Court Act. See, section 2 definition in this। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा। This date 24th of December 1971, इसी डेट को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ था। This act may be called Contempt of Court Act 1971. Now the question is this: what about before 24th December 1971? Let us discuss on this point. 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ, और 1971 से पहले क्या था डॉक्टर साहब? डू यू हैव एनी आइडिया इसके पहले कैसे ये कंटेम्प्ट वाला प्रोसीडिंग्स चलता था? Before that it was covered with the constitution. So which article of the constitution was that? It was the article 215 as well as 129. 129 for the Supreme Court, and Article 215, which is the court of record for the high courts and subordinate courts. The another important point is the definition, and definition के अंदर दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको indicate करना चाह रहा था। First is the civil contempt, and another is the criminal contempt. So C, section 2 subsection C is talking about the criminal contempt, and it has various part 1, 2, 3. Then D is talking about the high court. And section 3 says innocent publication and distribution of matter is not contempt. What is not contempt? There are a number of explanations. And section C, 6, 5 and 6, fair criticism of judicial act, not contempt. So section 2, 3, 4 and 5 is covering regarding what is the contempt, what is not the contempt. Let us come to the definition, straight to the definition. In this act, unless the context otherwise requires,
contempt of court means civil contempt or criminal contempt. Civil contempt means willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ, or other process of court, or willful breach of an undertaking given to the court. आपके स्क्रीन पे अंडरलाइन किया हुआ है. इसी चीज को लिखने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज दिस सिविल कंटेम्प्ट, क्या होगा? एनीवन? Let me take the loop into someone. अजय जी, अजय जी शायद वो बिजी हैं. शिवानी मैम, is there? Sir, I'm here, but I'm driving. I'm very sorry. मैं इसलिए पहले भी unmute नहीं कर पाई. Okay. Anyone? Sir, it is willful disobedience, sir. No, मैं जरा elaborate करूंगा, मतलब so that we can discuss it simultaneously. Okay, I'm doing myself. In the civil contempt, there are one phrase is the most important, which is willful disobedience. And not only that, before going into them, these are the civil contempt are in two parts, which was distinguished from or. One part is talking about willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, or writ, or other process of court. And another part is willful breach of an undertaking given to the court. कोर्ट के अंदर जो भी अंडरटेकिंग दिया जाता है, यदि उसका ब्रीच है विलफुल, तब भी ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है. बट the first part I would like to discuss. First part, it's starting with the willful disobedience too. So disobedience is there, it is not sufficient, it is a willful disobedience. How someone will prove this is the willful disobedience? To take them into the contempt. मैं अपना एक एक्सपीरियंस बतलाता हूँ. दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने अपना पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट केस डाला था. कोर्ट का पुलिस को डायरेक्शन था एक ओल्ड लेडी का टेक केयर करने के लिए, और पुलिस फोन पे आती नहीं थी. हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिया विदाउट गिविंग नोटिस टू देम. पहली मेरी भयानक गलती थी वो. I could not understand the meaning of the willful disobedience. यदि to what? Willful disobedience to what? Any judgment, decree, direction, order, writ, or other process. कोर्ट के एंड पे कितने तरीके के ऑर्डर आते हैं? फर्स्ट इज जजमेंट, डिक्री, या फिर कोई डायरेक्शन इशू किया गया हो, समवन ऑर्डर पास किया गया हो, व्हाटएवर इट मे बी.
या रिट, या इसके अलावा अब क्या बचता है, वट एवर इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड द अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट। एंड इसके अलावा भी एक टर्म है, वो टर्म ये है कि आपने खुद कोर्ट को अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगी। दीज आर द अंडरटेकिंग। So all these 7 ingredient, first is willful disobedience to, first is any judgment, any decree, any direction, any order, any writ or other process of court, or willful breach of an undertaking given to a court. Doctor sir? Yes, sir. जी Mediation settlement by जी two party, जी सर। ये किस कैटेगरी में आएगा? मेन सर कैटेगरी कौन सी इनमें? हम्म? जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस सर। नहीं, it will come under the undertaking. अंडरटेकिंग्स में दिया, अच्छा लास्ट में दिया, ठीक है। दोनों के दोनों अंडरटेकिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। ठीक है। So whoever is the affected party first give the legal notice to the contemner, specifically stating into them that this is the order, comply with, otherwise it would be amounted as willful disobedience of the court or willful breach of an undertaking. So that you complied with within a such and such period, otherwise it would be amounted as contempt of court. और उस पीरियड में वो नहीं आता है, तब आप ये कह सकते हैं कि नोटिस देने के बाद भी, इसका इनविटेशन इनवाइट करने के बाद भी इस पॉइंट पे इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। दैट इज व्हाई दिस इज willful disobedience or willful breach. Sir, whether under the mediation or any settlement between two parties or agreement between Yes. the two parties, is that a undertaking to the court, or court is merely stamping कि इन लोगों का ये, इन दो लोगों का, these two people have agreed upon these terms and I am just stamping upon it, okay you go ahead with it. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अजय जी। ये जो जितने भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हमारे चले हैं, तो कोर्ट क्या करेंगे, कोई ना कोई फॉर्म में वो ऑर्डर पास करता है, एंड नंबर ऑफ फॉर्म इज ऑलरेडी रिटन देयर, स्पेसिफिकली द 5 फॉर्म आर देयर, द जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट, एंड जो भी बचा उसको उनने डाल दिया अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अनदर पार्ट इज द अंडरटेकिंग। Once you are saying undertaking, when you are giving your own opinion or your own wish to the court, court is recording your statement. I am saying court is recording your statement. What I am saying, this is the another word, giving another word what intentionally or what the meaning of the Ajay ji said, stamping. Ajay ji, am I right or wrong? Right sir. तो कोर्ट क्या करती है, आपके स्टेटमेंट को वहां रिकॉर्ड करती है, कहती है कि उसी को ऑर्डर में कन्वर्ट कर। स्टैंपिंग मींस व्हाट? दे कैन आल्सो अल्टर, दे कैन आल्सो ऐड, दे कैन आल्सो समथिंग सब्सट्रैक्ट, बट एक्सेप्टेड एज इट इज, बट इट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट के प्रोसेस से निकल करके नहीं आ रहा, दिस इज योर ओन अंडरटेकिंग। और कई बार कोर्ट आपके अंडरटेकिंग को आपके बिहाफ पे वहां पे रिकॉर्ड कर देती है। हाँ हाँ, आपको ये करना है, कर रहे हैं ना, ठीक है, फॉर सेज लाइक दिस।
सो दिस इज योर ओन अंडरटेकिंग कि 1 सप्ताह के अंदर आप ये चीज ला करके देंगे, 2 सप्ताह के अंदर ये ला करके देंगे। दरअसल वो आपको इसी पॉइंट पे घेरना चाहती है वहां पे, विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू। Is there any doubt regarding this? No, sir. My contention comes from 2 points. Basically, one, whether, for example, there is a superdari release of any case property, say, Mhm. taking into criminal things. Hmm. No, though not a criminal content, but civil. I want, When a property is released, Hmm. they give an undertaking that we will bring this Hmm. thing to the court Hmm. whenever asked. That is one. Hmm. On the other Hmm. side, say a passport release is there. So Hmm. whenever we make an application, we say, kindly release the passport, but I undertake that I will not go outside the country without permission of the court. This Hmm. is one statement when you specify explicitly that I undertake to do this thing or not to do this thing. Hmm. Hmm. On the other hand, let us go to a proceeding, for example, case custody or any divorce by mutual agreement, Hmm. mutual consent. Sorry. So therein, Hmm. agreement is formed. These are Hmm. the conditions under which we are Hmm. deciding to sever the ties. Now, a Okay. person, for example, custody of a child. Hmm. Now a person goes after the divorce has happened. Few Hmm. years later, a person Hmm. approaches the court that I want the custody or I want the visitation rights. But Hmm. earlier during the divorce, he had said I'll not claim the custody or I'll not Hmm. dispute the custody. Hmm. So he has not given an undertaking. According to me, he has not given an undertaking to the court that I will not ask a custody. He has just told the other person that I will not seek custody. Hmm. So when he comes to the court seeking a legal Hmm. redressal, Hmm. law provides him guardians and what is there. He law provides him the redressal. Then Hmm. when he comes to the court asking for the custody of the child, whether that amounts to a civil contempt Hmm. or was it an undertaking because legal redressal is there as of now. Hmm. So मैं थोड़ा सा minute difference में जा रहा हूँ सर. नहीं, बिल्कुल सही कह जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्वेश्चन यहाँ पर ये है ना जी, मैं समझ गया आपके सवाल को। सो इज देयर एनी वे कि यदि कोई अंडरटेकिंग दे चुका है, सो अंडरटेकिंग कंप्लायंस पीरियड टाइम बाउंड होगा या एक समय के बाद वो इनफाइनाइट लूप में रहेगा? तो सर टाइम बाउंड के बाद, सर्कमस्टांसेस के बाद क्या वो उसको रिवोक कर सकता है? दैट इज अनदर क्वेश्चन, एंड इट इज सब्जेक्ट टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ द कोर्ट, एंड कोर्ट में वापस उसको करेक्शन जो कह सकते हैं या मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। सर यहाँ जो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो एक फ्री फ्रेज है जो अभी हाईलाइटेड था। इट वाज द विलफुल डिसोबीडियंस, एंड इन द केस ऑफ अंडरटेकिंग दिस इज द विलफुल ब्रीच। द मोस्ट पावरफुल थिंग व्हिच इज डायरेक्टली मैप टू ऑल अदर थिंग, मैं उसकी बात कर, आई एम कन्फाइंड ऑन दैट पार्ट। यू आर सेइंग कि देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस वहां पे उसको रिवोक करने के प्रोसेस होंगे, वो हैं, और वो कोर्ट का है। और दूसरी बात ये भी है, इफ द विलफुल ब्रीच इज आल्सो देयर, तो कंटेम्प्ट इनिशिएट कैसे होगा? राइट सर. उसके लिए अफेक्टेड पर्सन एज वेल एज कोर्ट आल्सो सुओ मोटो कैन टेक, मतलब वो प्रोसीजर इसके अंदर लेट डाउन है। इवन इसी के सेक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी एम्पावर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए रूल बनाए, और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए अपना एक रूल बनाया हुआ है, कैट भी अपना रूल बनाया हुआ है, और हाई कोर्ट के लिए रूल है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया। तो द क्वेश्चन इज दिस कि व्हेन इट कैन बी इन्वोक्ड। फॉर एग्जांपल पॉक्सो का एक केस ले लेते हैं, या फिर सेक्सुअल ऑफेंस का आज की डेट में बहुत ज्यादा जाता है। कमीशन ऑफ ऑफेंस इज वन पार्ट, coming into the complaint on one part, another part, और उसके बाद प्रोसीडिंग्स चलना, एफआईआर होना, या बीच में टर्मिनेशन, उसकी बात नहीं कर रहा, फिर उसको डेस्टिनेशन तक आकर के कन्विक्शन होना, और कन्विक्शन के बाद भी वो जो सजा है उसको वो झेलना।
ये इंटायर पार्ट मैं यहाँ पर पॉइंट आउट ये करना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे ऑफेंस हैं जो कमिट होते हैं बट वो इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय द विक्टिम इटसेल्फ। समटाइम्स हम लोग खुद बहुत सारे ऑफेंस जो है ना विक्टिमाइज होते हैं बट उसको गिव अप कर देते हैं, उस राइट को कोर्ट के तरफ नहीं लेकर के जाते। आर यू एग्री विद दैट? Right, sir. वेरी लेस अमाउंट ऑफ एक्ट जो है ना, कमीशन ऑफ एक्ट ऑफेंस, वो कोर्ट के ऊपर जाता है और इसका परसेंटेज यदि मैं कहूं तो 1% से ज्यादा नहीं है। यानी 99% क्राइम जो है ना स्पॉट फ्री है। आप घर से बाहर, मैं यहाँ से यदि मेट्रो तक जाऊं जो कि 500 मीटर होगा मेरे घर से, नॉट उससे ज्यादा नहीं होगा, 400 या 300 भी होगा। मैं यदि चारों तरफ ऑब्जर्व करता जाऊं शाम के समय में जब भीड़ होती है तो हर बाइक वाला मोटर एक्सीडेंट एक्ट का वायलेशन करता जाता है, हर पुलिस वाला पुलिस एक्ट का वायलेशन करता रहता है। सो मेनी थिंग, मैंने इवन रोड पे मैं चलूं तो एमसीडी वाले का जो है ना वो अपना ड्यूटी ब्रीच है, गड्ढा है, वहां एक्सीडेंट का रीजन है। सो एन नंबर ऑफ एक्ट मुझे दिखता है बट प्रोसीडिंग्स में जो आ गया, जो कंप्लेंट किया और जो प्रोसीडिंग्स में है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया। सिमिलरली विलफुल ब्रीच होने के बावजूद भी, सुओ मोटो कंटेम्प्ट का पावर कोर्ट को होने के बावजूद भी कोर्ट इन्वोक यदि ना करे तो कंटेम्प्ट का मैटर नहीं बन पा रहा। और विक्टिम जो अफेक्टेड पर्सन है वो कंटेम्नर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नहीं लेकर के आएगी और वो ये नहीं प्रूव करेगी कि बिल्कुल ब्रीच है, जिसके लिए मैंने नोटिस की बात की थी। बाय एनी वे, नॉट द लीगल नोटिस बट इवन थ्रू द ईमेल और थ्रू इन एनी मैनर आप उसको ये कम्युनिकेट कर दें कि इट वुड बी विलफुल, अलर्ट कर दें, और उसके बावजूद भी यदि वो कंटिन्यू रखता, तब ये एज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि दिस इज द विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग and adversely affected of course another part. So इस नैरो पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपेंड करें और हम लोग अब एंटर करें वहां पर एग्जैक्टली ये है क्या। देन वी विल डिस्कस फर्स्ट कि हाउ इट वुड बी विलफुल एंड देन वी विल डिस्कस देन कि हाउ इट वुड बी केम बिफोर द कोर्ट फॉर द एडजुडिकेशन एंड फाइनली कोर्ट उस पर क्या व्यू लेती है। कई बार कमीशन को अफर्म करते हुए, मानते हुए भी कहते हैं कि चलो अब आप पर्ज करने के लिए चलो। पर्जिंग एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप को सुधारो, अपने कंडक्ट को सुधारो फॉर द पीरियड ऑफ 1 year 2 year, या फिर पनिशमेंट इन्वोक करती है। और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट भी डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्या क्या। सो देयर आर वेरियस फेजेस। सो वी आर ऑन द फर्स्ट फेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिविल कंटेम्प्ट। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है the word civil itself। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ये जो एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट जो है और अदर प्रोसीडिंग है, ये सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए कन्फाइंड नहीं है। दिस इज कन्फाइंड टू ऑल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और अंडरटेकिंग की भी बात कहीं भी देख रहे हैं, इसमें सिविल नहीं लिखा हुआ है, सिविल प्रोसीडिंग्स की बात नहीं कर रहा है। दिस इज द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। But they are talking, there are two categories of interruption or कोर्ट की मैजेस्टी अफेक्ट हो सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, which is divided into the two part, the civil contempt and criminal contempt. Civil contempt means कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करना, डिसओबे करना और विलफुल डिसओबे करना और अपने अंडरटेकिंग को ब्रीच करना। कोई मैटर चल रहा है, उसके अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ और या डिस्पोज्ड ऑफ मैटर है, उसका कोई ऑर्डर पास हुआ, ये जजमेंट पास हुआ, डायरेक्शन पास हुआ, उसका वायलेशन, डिसरिस्पेक्ट। और दूसरा कैटेगरी ये है कि कोर्ट चल रही है
और कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना, प्रेशराइज करना अनदर वे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मैटर में किसी को एक्यूज बना करके कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है और धरना प्रदर्शन होना शुरू हो जाए, या मीडिया वाले पूरे पब्लिक में ये परसेप्शन बनाने लगे अपना जजमेंट पास कर, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स अंडर प्रेशर आ जाएगी और इन्फ्लुएंस हो जाएगी। इंडिपेंडेंस कोर्ट की कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाएगी बाय दैट एक्ट। या कोई पैम्पलेट बांटा जा रहा है वहां, अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, सो अनदर मिसलीडिंग परसेप्शन, कोर्ट के मुंह में कोई बात या किसी ऑर्डर को ठूसने वाली बात यदि होगी, इट वुड बी अमाउंटेड एज undue influence to the court proceeding, which comes under the criminal contempt. समरली मैं आपको बतला रहा हूं जो नीचे दिया हुआ है। Am I clear up to this point? जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, am I clear up to this point or not? Right, sir. So even bench fixing, bench bro beating जिसको कहते हैं, तो ये जस्ट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, so these are कोर्ट की मैजेस्टी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की बात है विदाउट बेसिस ऑफ फैक्ट। सो दिस पार्ट कम्स इनटू द क्रिमिनल कंटेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल है या सिविल या रिट है या अदर प्रोसीडिंग। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट वो है इसका phrase itself, which contains specifically civil or specifically criminal. However, the civil or criminal से इसका कोई connection नहीं। Civil proceeding and criminal proceeding से independent है ये word civil. Am I clear up to this point or not? जी सर। Right. ये मेन पार्ट है। So मैं पॉइंट आउट यहाँ पर ये करना चाह रहा था, जो कि और नहीं यार, जो अभी जो अजय जी ने इलेबोरेट किया है उसको वो और वापस बहुत सारी चीजों में इलेबोरेट कर सकते हैं। मैं एक चीज और आपको इसके विसिनिटी में यूआर एग्जाम के लाइट में लाना चाह रहा था, स्पेशली एन अंडरटेकिंग, दैट इज योर सर्टिफिकेट, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इन द सर्टिफिकेट इनटू द एसएलपी। दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग। अब वो कैसे है वो आप लोग ढूंढिएगा थोड़ा सा, बट दिस इज द पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, नंबर 1। नंबर 2, एक क्वेश्चन है वेदर एफिडेविट विल कम अंडर द पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग। यस सर, एफिडेविट भी अंडरटेकिंग में आ जाएगा। वो बोलता है सर कि मैं ये जो लिख के दे रहा हूँ वो, तो एफिडेविट का वायलेशन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको लाना चाहिए। ला सकते हैं सर, लेकिन एफिडेविट के लिए भी अलग से भी एक एक्ट है सर। नहीं, फिर तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, क्रिमिनल के केस में आप जरा देखिए 313 में एक्यूज्ड अपने डिफेंस के लिए स्टेटमेंट देता है और जजमेंट में वो प्रूफ हो जाता है कि ये गलत स्टेटमेंट था, तो वहां कंटेम्प्ट लागू होना चाहिए, कंटेम्प्ट भी इन्वोक कर देना चाहिए। बताइए। ना फारूक साहब बताइए प्लीज। नहीं, 313 में सर वो तो अपना डिफेंड करेगा ना वो कि मैंने वो क्राइम नहीं किया है। तो 313 में डिफेंस मतलब डिफेंस में उसको नहीं सर, उसको रॉन्गफुल चीज सबमिट करने का अपने राइट है। नहीं सर, एफिडेविट में यदि रॉन्गफुल यदि हो जाता है वो परज्यूरी ऑफ द कोर्ट का वायलेशन है, उसके लिए कंटेम्प्ट नहीं चलेगा, लेकिन कोर्ट के साथ धोखाधड़ी का एलिगेशंस चल सकता है। एफिडेविट को अंडरटेकिंग में भी ले सकते हैं सर अपन, अगर उसको ले नहीं सकते। देखिए आपको ये राइट, लॉ में फारूक सर आपको मैं एक साफ साफ बात बतला रहा हूँ, रिएक्शन देना बहुत जरूरी नहीं है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी नहीं है, दिमाग चलाना जरूरी है और वेरीफाई करना जरूरी है, देन रिएक्टेड। क्वेश्चन यहां पर ये है व्हाई।
यदि कोई लॉ किसी भी एक्ट को एड्रेस करने के लिए है तो लेट देम डील विथ सीआरपीसी, सीपीसी, ये सारा कुछ एड्रेस करने के लिए है तो वो है, उसमें डील होगा। फिर व्हाई वी विल इन्वोक द कंटेम्प्ट? यस सर, यस सर। अगर वहां उसके लिए पर स्पेसिफिक एक्ट है इफ्स तो एंड है। बट्स की बात नहीं है, वहां इफ्स लॉ में इफ्स एंड बट्स है, यदि कंफ्यूजन है। यदि कोई भी लॉ, कोई भी जजमेंट आपको इफ्स एंड बट्स में ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये भी है वो भी है, ऐसा नहीं चलता। वहां एक है, एक कंस्ट्रक्शन वन वे। और यदि दो है तो महा कंफ्यूजन है, और उसी कंफ्यूजन में लोग कंफ्यूज हैं। कोसिंग के लिए 482 लेकर के आए या 227, बहुत बड़ा डाउट है। कभी कभी दोनों भी लिख देते हैं सर, दोनों भी लिख दे, मैं देखा हर बार पिटीशन। कोर्ट डांट के भगा देती है, हाँ हाँ, दोनों क्यों लिखा और बोल के समझ में कोर्ट नहीं डांट। आता है क्यों डांट पड़ गया। हम्म, ये कंफ्यूजन स्टेट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको लॉ प्रोवाइड करा रहा है देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वोक करने की जरूरत क्यों है? यू नीड टू जस्टिफाई एटलीस्ट योरसेल्फ, देन मूव टू द कोर्ट। मैं यस इस सर। कंफ्यूजन पे इसलिए ड्रैग कर रहा हूं थ्रू दिस कंटेम्प्ट पार्ट, कि कहां नहीं है उसको भी होना उतना ही जरूरी है जहां है, सो दैट की क्लैरिटी एकदम साफ साफ आपको दिखे। वन साइडेड कवर नहीं, ये बोथ साइडेड कवर हो, प्रोटेक्टेड। बट यस सर। एनीवे यहां पर कुछ अलग चीज है। वो चीज है अ विलफुल ब्रीच ऑफ not only undertaking but undertaking given to a court। ठीक है, तो पूरे फ्रेज को फेयरली आप पढ़िए, जिसमें 3 पार्ट है। वन पार्ट इज द विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग, दूसरा गिवन टू whom, a court। डज दिस कम अंडर दिस कोर्ट के अंदर क्या ट्राइब्यूनल भी आएगा? There is a huge difference between the tribunal and court, think it। कुछ कोर्ट्स को तो 226 का पावर है सर। यू थिंक इट, कुछ कोर्ट को है, या तो ट्राइब्यूनल के जिसको जिसका जो पावर है उसके हिसाब से सारे ट्राइब्यूनल तो ट्राइब्यूनल है, वो तो कोर्ट नहीं है, तो क्लियर है। हाँ, कोर्ट नहीं है वो क्लियर है, ट्राइब्यूनल इज लेकिन वो नॉट अ कोर्ट। रिकमेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। दिस इज सब्जेक्ट टू योर वेरिफिकेशन एंड इट डिपेंड ऑन द कोर्ट, एक्ट टू एक्ट एंड ट्राइब्यूनल टू ट्राइब्यूनल। नहीं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं चला सकता है वो। ट्रैप नहीं चला सकता है, या क्या रेमेडी है वो अपना आप देखिए, वो हम नहीं बोल रहे हैं इतना। अभी अभी हमने बोला कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड, इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। तो बहुत सारे ट्राइब्यूनल हैं, सारे ट्राइब्यूनल पे आप एग्जामिन कीजिए और आप देखिए, तब पता चलेगा। एक ट्राइब्यूनल का नाम मैं बता देता हूं आपको, उसका नाम है कैट, फुल्ली empowered टू टेक इनिशिएटिव कंटेम्प्ट। मैंने हाईकोर्ट भी वो नहीं जाएगा, वो खुद से खुद कंटेम्प्ट लेगा। एंड कंज्यूमर कोर्ट के जो ऑथर हैं अभी मैंने हमारे बुक के, यस शर्मा, चीफ ने इनको कल काफी सारा अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट दिया है और अप्रिसिएशंस दिया है। ये बताएंगे कि वो कंटेम्प्ट में आएगा कि नहीं, डॉक्टर साहब? तो बहुत इंटेंस, मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर साहब का एक इंटेंस रिसर्च उस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल के लिए। तो देयर आर वेरियस ट्राइब्यूनल्स, हर ट्राइब्यूनल को इस एंगल से आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या रेमेडी है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये सेट किया जा सकता है। कोर्ट तो है, कोर्ट कंफर्म है, व्हाट अबाउट अदर्स? नाउ पॉइंट वेरी क्लियर है। अभी तक मैं सिविल कंटेम्प्ट को इसके डेफिनेशन से डिस्कस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है
यहाँ पर एक पार्ट है सिविल. It doesn't mean कि it apply into all the civil judgment, civil decree, direction, order, writ or other proceedings of the court. Civil means it's the nature of contempt which may invoke in any judgment which may be civil, criminal or other judgment, decree, direction, order, writ and other proceedings of court. Here is the concern is the court, not the civil proceeding or criminal or writ proceedings. Or willful breach of an undertaking given to the court. अब आते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो अभी ऑलमोस्ट समरी मैंने उसका आप लोगों को समझाया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एज वेल एज अनड्यू इन्फ्लुएंस टू द कोर्ट मैजिस्ट्री, उसको डाउन करने के लिए विलफुल, वो सारा कंटेम्प्ट में आएगा जो क्रिमिनल नेचर का हो. इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द criminal matters. It is the nature of contempt. So criminal. अच्छा एक बात बताइए, कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो एक जस्टिस कर्नन का मैटर आप सबने सुना होगा. इट वॉज वेरी हाईलाइटेड. एक हाईकोर्ट के जज ने कुछ जजेस को, ब्रदर जजेस और इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करप्ट जजेस कहा. उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट इन्वोक किया गया था और उनको जेल में रखा गया था. हाईकोर्ट के सिटिंग जज को टिल द रिटायरमेंट ही वाज सिटेड इनटू द जेल. सो ग्रेट केस स्टडी रिगार्डिंग दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सुब्रत राय सहारा को इसी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट भेज दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट भी आप एग्जामिन कीजिए. इट वाज द सिविल कंटेम्प्ट नॉट क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सुब्रत राय सहारा को जो जेल भेजा गया था वो सिविल कंटेम्प्ट था और जस्टिस कर्नन को जो जेल भेजा गया था इट वाज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अब किसी भी प्रोसीडिंग्स में नहीं था. मीन्स criminal contempt means the publication whether by word spoken or written. See, the publication of any matter. मैं इस ब्रैकेट को भी छोड़ रहा हूं, थोड़ा जंप कर रहा हूं, सीधा मैं आ रहा हूं. कंटेम्प्ट मीन्स publication of any matter or the doing of any other act whatsoever which, उसके बाद नीचे टर्म्स है और पब्लिकेशन को स्पेसिफिकली डिफाइन किया है यहाँ पे, वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज. देखिए कितना ब्रॉडर स्कोप है. सिर्फ पब्लिकेशन अंडर द कंटेम्प्ट एक्ट. यानी जूता उछालने का मतलब जो पार्ट है सीजीआई कोर्ट के अंदर जो रिसेंट इवेंट है वो इस पब्लिकेशन के अंदर आ जाता है डायरेक्टली. आता है या नहीं? हाँ यस सर, आता है सर, इसमें आता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है. अभी नहीं आया है सर, अभी नहीं आया है क्योंकि वो तो सिर्फ पब्लिकेशन के अंदर आया है, कंटेम्प्ट में आया ही नहीं है. कंटेम्प्ट तो आगे जब 3 इंग्रेडिएंट में से कोई मैच करेगा तब आएगा. अभी अभी मैंने बोला कि जल्दी मत कीजिए. हाँ यस सर. So it is a publication by words spoken or written or by sign or visible representation or otherwise. Visible representation means whatever can be seen. Sign means what can be shown or otherwise. मतलब किसी भी तरीके से बिना बोले भी आप कोर्ट को टीच कर सकते हैं. आपके बैठने का तरीका, कोर्ट में बैठिए, कुर्सी उल्टा करके अपोजिट डायरेक्शन में कोर्ट की तरफ पीट करके बैठ जाइए. कोर्ट इरिटेट हो रही है, प्रोसीडिंग इंटरप्ट हो रहा है. इवन
आप अपने गाउन के ऊपर, कोट के ऊपर काला रिबन या व्हाइट रिबन लेकर के जाते हैं, दिस इज ऑल्सो इनवाइटिंग देयर अटेंशन. दिस इज द पब्लिकेशन, नॉट द कंटेम्प्ट. मैं सिर्फ पब्लिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको कंटेम्प्ट समझने की भूल ना कीजिए. और ये पब्लिकेशन इन तीनों चीजों के साथ, जो कि और के साथ एसोसिएटेड है, एक या एक से अधिक, इन तीनों में से किसी एक के साथ मैच कर जाता है, तब आप समझ जाइए कि अब कंटेम्प्ट बना है. फिर से मैं रीड कर रहा हूं. क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन जो ऑफ एनी मैटर, और नॉट ओनली द पब्लिकेशन, अदर भी है, द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट whatsoever which scandalize or tends to scandalize or lower or tends to lower the authority of any court. Number one. Now combine the publication and read with one. और अब जूता उछालने के केस को आप समझिए, तब लगेगा यस, इट इज अंडर द क्रिमिनल. और prejudice or infers or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding. Mind it, यहां तीन चीज है. या तो कोर्ट को प्रिजुडिस कर रहे हैं आप, या इंटरफेयर कर रहे हैं डायरेक्टली, या टेंस टू इंटरफेयर विथ, अटेम्प्ट कर रहे हैं, in which the due course of any judicial proceeding. Or third part, interferes or tends to interfere with or obstructs or tends to obstruct what? The administration of justice in any other manner will amounted as the criminal contempt. Again, I am saying this is not confined to the criminal nature of proceedings or court. This all the act in any manner, any matter will come under the criminal contempt. Am I clear up to this point, or is there any doubt? Of course, there should be a lot of doubt, but lot of clarity भी होनी चाहिए. आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं. कुल मिलाकर के यदि मैं ये कहूं कि कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन या अंडरटेकिंग सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है, और कोर्ट के मैजिस्ट्री को या प्रोसीडिंग्स को या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंटरफेयर करना इन एनी मैनर, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. तो ये कितना गलत होगा या कितना सही होगा, प्लीज. So now my question is कि 71 में क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं आया? Why it came in the 1971? जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है, जो टेक्स्ट के थ्रू मैंने समझा है, 71 से पहले Article 1 to 9 Court of Record of the Constitution as well as the Article 215 for High Court and 1 to 9 for the Supreme Court is empowered as Court of Record. Read with Article 142, 129 read with, जहां contempt of court का word use किया हुआ है. Contempt of court कोड ही नहीं था,
कोर्ट क्या करती थी, वो अपने तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इंटरप्रेट करती थी और कई मायने में सिटीजन के ऊपर कहती थी यस दिस इज द कॉन्टेम्पचुअस एक्ट। नॉट ऑलवेज, बट समटाइम्स कुछ जजमेंट एक्सेसिव था जो लेजिस्लेशन को लाने के लिए इन्वोकिंग था। मतलब ये कहें कि कई ऐसे कंटेम्प्ट के सब्जेक्ट थे जो लगता था कि ये कंटेम्प्ट नहीं है, कोर्ट की ओवर रीचिंग है, डोमिनेटिंग कैपेसिटी है, इसलिए इसको कोडिफाई करना जरूरी। जब ये नेसेसिटी बहुत स्ट्रांग हो गया तब ये एक्ट आया। मतलब एट द टाइम लाइन कोर्ट ने जब इसके एक्सरसाइज को ज्यादा करना शुरू किया तब वी मीन्स the legislator, the parliament feel that the contempt of court आना चाहिए, and then contempt of court came in 71. It took around 20 years after independence. So it was the one region, not only region. और उसके बाद से contempt of court आ रहा है। Now the question is this, अब AOR एग्जाम में आते हैं। AOR एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आने के बाद आर्टिकल 129 इररिलेवेंट हो गया है? क्योंकि अब तो आप इसके थ्रू डील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी रूल बनाया हुआ, यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा। द क्वेश्चन इज दिस, वीसी मिश्रा का जजमेंट है, वो बहुत ही फेमस जजमेंट है। उसमें ये कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर या कोई भी मैंने कोर्ट ने ये फाइंडिंग लेकर के आया है, एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को अफेक्ट करके वहां डोमिनेट नहीं करेगा। ये कोर्ट के लिए गाइडलाइंस है कि ऐसे इंटरप्रेट करना है, और हमारे लिए गाइडलाइंस के ऐसे इसको देखना है और कोर्ट के सामने केस लेकर। ये एक पार्ट था। पहला पार्ट क्या था कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को प्रोविजन को डोमिनेट नहीं करेगा। एट द सेम टाइम once the statutory provision is statutory remedy is available, then constitutional power invoke करने की जरूरत नहीं। मीनिंग thereby यदि किसी पॉइंट पे यदि स्टैट्यूटरी प्रोविजन कवर करता है, कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जहां ये कवर नहीं करता है, वैसे सिचुएशन में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वोक करें। ये कोर्ट का सेल्फ रिटन डायरेक्शन और जुरिस्प्रूडेंस। Am I clear up to this point or not? प्लीज रिस्पॉन्ड। मैंने बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को टच किया है और अभी आपके सामने लाया है। Yes, sir. This is clear, sir. Yes, sir. So now I am going to the another heading only, which is section 3, innocent publication or distribution of matter, not contempt. So here is the word innocent, मतलब intention is there। आपका intention यदि नहीं हो तो वो कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आता है। सो सेक्शन 3 इज डीलिंग विथ which is not under the contempt, and fair and accurate report of judicial proceedings, not contempt. You can read this section फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, जो आर्टिकल 19 के साथ।
जो मीडिया को ये पावर एम्पावर्ड है आज के डेट में, सोशल मीडिया को और हर इंसान को, जो कहते हैं कि सारा कोड करप्ट है और ये है और वो। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट है वो, यदि नहीं है तो एग्जामिन करना पड़ेगा, यू कैन आल्सो एग्जामिन अकॉर्डिंगली, but the roughly is fair and accurate report of judicial proceeding is not contempt. इसका दूसरा पार्ट भी unfair और inaccurate report of judicial proceedings of course under the contempt. So verification is very important because of this accurate, or intention is very important because of this word fair. Subject to the provision of the contempt contained in section 7, a person shall not be guilty of contempt of court for publishing a fair and accurate report of the judicial proceeding or any other stage thereof. अब इसमें से इस पूरे लाइन से फेयर एंड एक्यूरेट वर्ड को हटा दीजिए, जो अपने आप को पूरी घटना को दो डिफरेंट पार्ट में बांटता है, अनफेयर और अनएक्यूरेट, एंड फेयर एंड एक्यूरेट, दो अलग अलग कंपार्टमेंट एंड डिफरेंट बैंक ऑफ रिवर बना देता है। इसको यदि मैं भूल जाऊं तब क्या मतलब निकलेगा? रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग नॉट कंटेम्प्ट, जो आज के डेट में लोग समझते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं सोशल मीडिया वाले। इसको तो पूरा मिटा ही चुके हैं। Not all exceptions are always there, or these are now become exceptions, जो ठीक से इसको समझ रहे हैं। Fair or 5 is the most important part. Many times will help you to answer the questions with this reference. Fair criticism of judicial act, not contempt. What is come under the judicial act? I'll come later on. A person shall not be guilty of contempt of court for publishing any fair comment on merit of any case which has been heard and finally decided. किसी जजमेंट को आप क्रिटिसाइज करेंगे और वो कंटेम्प्ट में आया फेयर, तो आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्रिटिसिज्म में आ जाना चाहिए, और वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। Now, complaint against presiding officer of subordinate court when not contempt. A person shall not be guilty of contempt of court. Shall not, the word is not. Shall not be a guilty of contempt of court act, contempt of court in respect of any statement made by him in good faith concerning the presiding officer of any subordinate court to any other subordinate court। अब यहां पर ट्राइब्यूनल आ जाएगा, the high court to which it is subordinate। in section subordinate court means any court subordinate to a high court, और हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट के अंदर ही ट्राइब्यूनल्स आते हैं। अच्छा, सर्टेन कैमरा प्रोसीडिंग्स सेक्शन है। अब आप आगे आ जाइए, अदर डिफेंस नॉट अफेक्टेड, एनी एक्ट टू इम्प्लाई enlargement of scope of contempt, power of high court to punish contempt of subordinate court, power of high court to try offense committed or offenders found outside jurisdiction। ये समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। भैया अजय जी हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, है ना। अब अजय जी आ जाएं बिहार में और वहां बैठ करके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को गाली दें अच्छे तरीके से, तो उसके टेरिटरी में तो आया नहीं। अब क्या किया जाए? हर केस यहां पर यह देखा जाता है कि आपके जुरिडिक्शन में क्राइम हुआ हो,
क्या कंटेम्प्ट में भी देखा जाता है? Expanded, sir. This definition is expanded jurisdiction. Section अब 11. एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए कि आप इंडिया से चले जाइए पाकिस्तान, या फिर चले जाइए इंग्लैंड, लंदन, एनीवेयर, वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट को आप गाली दीजिए भर भर के कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, वहां से जाकर के जो पब्लिकेशन करना है कीजिए। आउटसाइड जुरिडिक्शन है ना, कैन इट बी अलाउड? नहीं बनेगा मैटर। थिंक इट। And the most important part is this section 12, which is the punishment for the contempt of court. किस केस में contempt not punishable in certain cases? Procedure where the contempt is in the face of Supreme Court or High Court. कहाँ proceedings कैसे चलेगी? ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 14, आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां रूट करता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट फ्रेम करेगा रूल और नॉट। और व्हाट नाउ, अब वो प्रोसीडिंग्स के बारे में कॉग्निजेंस उसका कैसे लिया जाएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, द कॉग्निजेंस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन अदर केसेस, दिस इज द प्रोसेस। मैं वहां अभी नहीं जाना चाहता हूं, मैं तीसरे लाइन पे जाना चाहता हूं, और वो पॉइंट यहां पर ये है, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए, where is that? ओके, मैं दूसरा ऑप्शन ही ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। चलिए मैं पब्लिकेशन में ही देख लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे तो होगा ही। देयर डिफरेंट पार्ट, वो भी दिख नहीं रहा है, मैं उसको अभी यहीं पे ब्रेक करता हूँ। How was that today's discussion? गीता जी हैं? Yes, sir, I'm there. How was that? Sir, currently I'm traveling to Chandigarh High Court. Vande Bharat में हूँ sir. It So was your demand difficult. to discuss this thing. I have a question, sir. Definitely, this topic was given by me only, sir. हाँ I सर have a बताइए। question. ये सी के 2 में हम्म, ये
ये वर्ड आया है To discuss. एनी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ये एनी अथॉरिटी में क्या एडवोकेट्स भी आ सकते हैं बिकॉज दे आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट? ये आपको बताना है सर। ये नहीं अथॉरिटी में आई एम टॉकिंग विद एन एक्सपर्ट दरअसल चक्कर यहाँ पर ये है कि इस तरीके का सवाल काफी रेलेवेंट है। मैं साफ साफ ये बिकॉज पटना हाई कोर्ट में ये हुआ था कि एक सिटिंग जज एक महिला जज के साथ कुछ उनका अल्टरकेशन हुआ था। वो क्या हुआ था उसमें मत जाइए, उस कहानी में मत जाइए। वो कहानी हम लोग अभी कोई भी इंडिविजुअल कहानी को हम नहीं यहाँ इंडिविजुअल कहानी पे नहीं जा रहे थे सर। हम आपको बता रहे हैं ना, आप उसको अभी जरा सुनिए मेरा भी। जी ओवरऑल इंटेंट क्या है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को। अब जब भी कोई भी घटना घटती है तो उसमें समथिंग इज डिस्टर्बिंग। आपको लगेगा वी आर इन द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, वी आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, समथिंग वुड बी डिस्टर्बिंग यू फील, और आपको ये लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए बाय ऑन दिस पार्ट। उसको आप जरा प्रॉपरली एग्जामिन करें, वो पार्ट वहां आ जाएगा, एक पर्टिकुलर एक्ट में आ जाएगा और वो एड्रेसेबल होता है। समथिंग आपको लगेगा कि जबरदस्ती किसी को ड्रैग कर लिया गया है, आप खुद एग्जामिन कर लेंगे, दिस इज द वेरी सफिशिएंट। क्योंकि कंटेम्प्ट के बारे में इतने सारे वर्ड्स 71 से पहले तो थे नहीं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन और फेंस और इंटरप्रेट द थिंग्स लाइक जो एक्ट के अंदर है। अब जब एक्ट है हमारे पास, समझने के लिए इंटेंट क्या है, किसको नहीं माने किसको माने, इनफ सफिशिएंट अमाउंट। उसको जब आप एग्जामिन करेंगे अच्छे से बैठ करके, उसको जरा समझने का कोशिश करेंगे और समझ लेंगे, आपको या किसी लॉयर को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि वो कंटेम्प्ट के नेचर में आता है या नहीं। वो किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपरली देख करके बताएगा कि दिस इज द कंटेम्पचुअस इज कमिंग फ्रॉम प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइड और lawyer side, or it is coming from the outside media side or public side, and what is the nature, is this civil or is this criminal? You are able to decide it, there is without any confusion। और bad intention और otherwise वो तो अलग जगह है, wrong invoking और वो अलग। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि योर एग्जाम के साथ इसको कैसे मैप किया जाए। मैं इसीलिए अदरवाइज ड्रैग होकर के नहीं जाऊंगा, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट आई डोंट वांट। दैट इज योर ओन डोमेन, स्काई इज अनलिमिटेड। हर चीज पे जानते हैं, बहुत जितनी उड़ान भरनी है आप भर सकते हैं, आपका डोमेन है। बट मेरा यहाँ फोकस क्लियर है कि उतना क्लैरिफाई मैं करूं कि एग्जाम के समय में वो डिस्टिंग्विश करना आसान हो और सिर्फ वहां फोकस हो। अदरवाइज बाकी केस और कहानी लेकर के बैठे तो बहुत मजा भी आएगा और टाइम कैसे बर्बाद हो उसको कोई ठिकाना नहीं है। ओके आप देखिए, पढ़िए इन सेक्शन को, आपको खुद पता चल जाएगा। और इसका इन्वोकिंग बहुत कम होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की जो इन्वोक किए जाते हैं ना, बहुत रेयर है रिलेटिव टू जिस अमाउंट में केसेस आ रहे हैं। एनी क्वेश्चन? सर इस एक्ट में सर सुमोटो कंटेम्प्ट जो कोर्ट लेता है उसके बारे में सर किधर लिखा है कुछ डिटेल्स? सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं स्पेशली फ्रेम्ड रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए, वहां पर वो तीनों स्टेप्स लिखे हुए हैं और वो स्टेप्स इसी एक्ट से इनहेरिटेड है। एक्ट को आप जरा एग्जामिन कीजिए। एक्सपेक्टेशन ये है कि यू हैव टू बी विथ यू दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट रूल्स रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके कुछ तो 12 या 13 ऑर्डर हैं, उसको आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट रूल से अलग है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, दैट इज द डिफरेंट रूल जो
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ने इंपावर किया है सुप्रीम कोर्ट को रूल बनाने के लिए। रीड विथ आर्टिकल 145 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रूल्स बना है। उस रूल के थ्रू आप जाएंगे, आपको पूरी प्रोसीडिंग्स पता चल जाएगी कि कैसे सिविल प्रोसीड किया जा सकता है और कैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीड किया जा सकता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। राव सर, प्लीज। Sir, the question is that in 1971, when the Contempt of Court Act has been passed, not many tribunals were there in force. Now many tribunals have come. The distinction Yes. between the tribunal and the court is we are not going into the details, but only so long as the contempt is concerned, I have got my experience where I have asked the court to issue a direction and take the proceedings. They said that we don't have any power under the Contempt of Court embedded into the Tribunals Act itself. Act के अंदर तो नहीं है, but you can सर always मैं take यहाँ advice. इंटरप्रिटेशन है कोर्ट का मेनी टाइम्स और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट का इंटरप्रिटेशन है, इवन 7 जजेस बेंच का इंटरप्रिटेशन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट माने हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है और सबऑर्डिनेट कोर्ट में इंटरप्रिटेशन करके वो ट्राइब्यूनल को भी लाया गया है। दैट्स व्हाट ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं, है ना जी। ये इंटरप्रिटेशन है। तो ट्राइब्यूनल इज ऑलरेडी। दूसरी बात, जिस एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया है, जैसा सत्यजीत सर कह रहे थे, उसमें उसको कुछ पावर कोर्ट का इनहेरिट किया गया है, सिविल कोर्ट का, सर्टेन क्रिमिनल कोर्ट का पावर को इनहेरिट किया गया। जब एक्ट को आप पढ़ेंगे तो प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग और इवन पावर के रिगार्डिंग वहां पर कोर्ट के पावर जो इनहेरिट होते हैं उसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ जाता है। सो इनहेरिटेड पावर भी है जी। मतलब ये है जरा आप सोच करके देखिए कि यदि कोई भी कोर्ट को आप गाली गलौज करके आ जाए फिर तो कहीं कंटेम्प्ट ही नहीं बनता, कुछ तो उपाय होगा जी। अब वो उपाय एज ए कस्टोडियन ऑफ लॉ existing on this land, lawyer ही बता सकता है। What is that उपाय? The bench itself is challenging this the is the way and route. This is the way and route कि वो कोर्ट, वो भी कोर्ट का हिस्सा है और सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। तो जैसे बाकी कोर्ट कंटेम्प्ट के लिए हाई कोर्ट को लिखते हैं, they are also free to write. They have power to write. They can also initiate. Yes, sir. ये तो मानता हूँ मैं. They can write to the High Court and do it, but the bench itself is challenging the advocate, saying that show me the provision under the Tribunals Act where I have got a power to issue the contempt of the court order. Section 17 is there, no, sir? So no, not in all, particularly in company law matters. So Rao sir, now you are empowered to sue them. First sue the Contempt of Court Act or definition and say कि the court definition के अंदर tribunal भी आया है and you are inherited the power of that court. So root on that line and sue them, they will convince. और यदि उनको लगता है कि उनके वो कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो उनसे पूछ लीजिए तो क्या आपके ऊपर जूता चप्पल चलाया जाए तो आप क्या करेंगे? What is the remedy for that? So they are free from the any civil and criminal contempt or uncovered. Sir, historical background, if we take into historical background, before the 1971 Act, 1952 Act is also there, Contempt of Court Act, 1926 Act is also there. Oh, so I was not aware. Sorry, sir. I was not aware. Kindly just give me that Contempt of Court. Yes, sir. Actually, I was not aware about that. So I just find out and never ever seen that part. Yes, sir. Once I'll go through it. Yes, sir.
Then So- I'm reserving my right to correction regarding the thing. No, sir, no, that happens. First regularly. time I'm aware about this. That actually in 1961, M.N. Sanyal and Sanyal committee was recommended to enact the Comprehensive Act because 52 Act is not doing that. Would say not sufficient for that Contempt of Court Act. So 1971 it came into picture by way of if I'm not wrong, I have written that H.N. Sanyal We'll committee. find out. H.N. We'll discuss. Sanyal committee in 1961 recommended for the Comprehensive Enactment and Content of Court Act. So accordingly, the 1971 Act came into picture. And as sir rightly said that 215 and 129 always there, Article 215 and 129. And the beauty of this 1971 Act is that subordinate to the High Court. Every court means tribunal also subordinate to the High Court. It is specifically expressly mentioned. So tribunal has its own Contempt of Court rules. Act that rules are there. Every tribunal is got High Court frame. Contempt of Court Act itself framed the rules, and in the rules also clearly mentioned. And 1975 rules, Supreme Court rules, as sir rightly pointed out, Supreme Court is having the same powers as contemplated under 1971 Act only. So High Courts and Supreme Courts have framed their own rules with regard to the Contempt of Court Act, because I was dealing with an even Sessions Court one Contempt of Court case. Generally, Contempt of Court Act, Sessions Court, with regard to the criminal aspect, because police custody, some conditions are not been adhered by that agency. So they filed that violations, and that was dismissed in Section 2C, and there is no intention and other things, all this thing. So Dr. Saab is saying no. No, sir. I'm not saying no. I have little pain in my neck. I'm moving like this, sir. What you are saying is no. There's a pain in my neck. I'm moving like this only, sir. Our Sidhu Saab says whatever we are serious about that, sir. Right, sir. That is there, sir. This is historical background, and Section 17, 1985 Act is also clearly mentioned. Contempt of Court Act, Section 17, if you read it properly, it clearly empowered the court of tribunal to initiate the contempt proceedings of its disobedience or any. Rao sir, there is an answer for your question. I was examined just confined to the Supreme Court only. Sir. Now this is extended to the entire court. Yes, sir. All the adjudication proceedings authorities. Okay.